Start. Hi guys, Hello, I'm Megha I'm Anurag. and this is Poems with Friends जहाँ हम एक पोएम डिस्कस करते हैं और कुछ फील करने की कोशिश करते हैं। तो वी नो हमने काफ़ी टाइम से एपिसोड नहीं किया बिकॉज हम बहुत दूर हो गए फिजिकली और लाइफ में चीज़ों पे, बट आई थिंक वी वर ऑल्सो मिसिंग इट। तो आज की पोएम है डजेंट एवरी पोएट राइट अ पोएम अबाउट अनरिक्विटेड लव। दिस इज बाय मैरी ओलिवर and I think Mary Oliver is beginning to become my favorite poet. Not because मतलब मोस्टली बिकॉज मुझे बहुत रिलेटेबल लगती है उसकी बातें, मतलब वो उसके इमोशंस और जो बातें करती है बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ही तो फील होता है, तो इसलिए ठीक है। अनुराग ने पोयम ये नहीं पढ़ी है पहली बार, विच इज़ ग्रेट, सो वी विल गेट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो अनुराग, विल यू रीड इट? By the way, I love the title. कितना सही प्लीज। है. Doesn't every poet write about a poem about unrequited love by Mary Oliver? The flowers I want to bring you, wild and wet from the pale dunes, and still smelling of the summer night, holding a moment or two of the night crickets. Humble prayer would have been so handsome in your hands. So happy I dare to say it in your hands, yet your smile would have been nowhere. And maybe you would have tossed them onto the ground, or maybe for tenderness you would have taken them into your house and given them water, put them in a dark corner of out of reach. In matters of love of this kind, there are things we long to do but must not do. I would not want to see your smile diminished, and the flowers anyway are happy just where they are. On the pale dunes above the cricket's humble nest, under the blue sky that loves us all. नाइस। ठीक है, मैं एक और बार पढ़ती हूँ ताकि तू भी सुन पाए। Doesn't every poet write a poem about unrequited love by Mary Oliver? The flowers I wanted to bring you, wild and wet from the pale dunes, and still smelling of the summer night, and still holding a moment or two of the night cricket's humble prayer, would have been so handsome in your hands. So happy I dare to say it in your hands, yet your smile would have been nowhere, and maybe you would have tossed them onto the ground. Or maybe, for tenderness, you would have taken them into your house and given them water, put them in a dark corner out of reach. In matters of love of this kind, there are things we long to do but must not do. I would not want to see your smile diminished, and the flowers, anyway, are happy just where they are. On the pale dunes above the cricket's humble nest, under the blue sky that loves us all. नाइस। ठीक है, क्या फर्स्ट फीलिंग क्या लगी इसको पढ़ के? ये काफी रोलर कोस्टर था, एकदम साइन वेव की तरह ऊपर गई और नीचे आ गई. मेरे को तो बहुत ही लगा कि आई थॉट कि इट इज गोइंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ लव एटसेट्रा, बट देन वो एकदम से शी अंडरकट्स ऑल हर इमोशंस. शी इज लाइक कि व्हाट आई थिंक इज नॉट व्हाट यू डू, सो फाइव वेज दीज ब्यूटीफुल कलर्स. मैंने काफी आई रियली लाइक द वे शी पुट इट कि हाँ मतलब we can discuss more, but these were my first thoughts कि it was very unexpected एकदम से midway. आई एग्री, आई थिंक मतलब मुझे भी वही लगा कि इट वॉज नॉट अ सिंगुलर फीलिंग, एक सिंगुलर फीलिंग नहीं है उस पोयम में। मतलब स्टार्ट हम करते हैं एक पागलपन से, और फिर एक मोमेंट आता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, इन मैटर्स ऑफ लव दिस काइंड हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर एक मोमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस आता है। तो इट्स लाइक अ होल स्टोरी जो एक इंसान मतलब उसके मन में चल रही है, एंड पोयम में वो तुम्हें राइड मिलती है पूरी। तो मुझे भी वही पसंद आया जिसकी मैंने बोला कि मुझे बहुत रिलेटेबल लगती है। आई थिंक मुझे इसलिए रिलेटेबल लगती है क्योंकि जैसे हम लोग भी इमोशंस फील करते हैं तो वो रोलर कोस्टर की तरह होते हैं ना, कि अरे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, फिर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए,
फिर हाँ ठीक है, सब सही है, नेचर बहुत सुंदर है। तो वो मुझे वो बहुत रिलेटेबल लगा इस पोयम में। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो हम पैराग्राफ वाइज चलते हैं, स्टोरी के पर्सपेक्टिव से चलते हैं थोड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट और सेकंड करते हैं। The flowers I wanted to bring you, wild and wet, from the pale dunes, and still smelling of the summer night, and still holding a moment or two of the night cricket's humble prayer, would have been so handsome in your hands. Hmm. What is your take on this? आई थिंक मुझे फिर से पढ़ते हुए ये बात बहुत बढ़िया लगी कि ये पूरा एक ही सेंटेंस है, लिटरली इतना बड़ा एक सेंटेंस है ये। फ्लैट्स आई वांट टू, तो एक उसमें एक मतलब वो है ना, एक ब्रेथलेसनेस है मतलब उसके अंदर, कि तुम एक बात कह रहे हो कि जो फ्लावर मुझे तुम्हें लाए थे, वाइल्ड एंड वेट फ्रॉम द, मतलब उसमें एक पागलपन सा है। मुझे एक्चुअली ये भी, ये वाला पार्ट पोएम का बहुत रिलेटेबल लगा, क्योंकि कुछ पोएट्स होते हैं जो सिर्फ वाइज बातें करते हैं, जैसे वॉल्ट विटमैन की पोएम्स में बहुत ही काम और वाइज बातें होती हैं। तो मुझे लगता है कि इतना वाइज, मतलब मैं तो नहीं हूँ हमेशा इतना वाइज। इसकी पोयम It's में, not relative. हाँ इसकी पोयम में वो एक इनोसेंस, एक नेवनेस, ये वाइल्डनेस है। तो मुझे इसकी बिगनिंग तो मुझे बहुत ही पसंद आई, कि द फ्लावर्स आई वांट टू ब्रिंग यू वाइल्ड एंड वेट, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान खड़ा होके एकदम पागलों की तरह, उसकी आंखों में एकदम नशा है प्यार का, और वो देख रहा है कि मैं तुम्हें जो फ्लावर्स लाने वाला था वाइल्ड एंड वेट, ऐसे मतलब उसका प्यार ही इतना वाइल्ड है। वो लगा, तुझे क्या लगा? I think what I really liked is how non-cliche this is despite using flowers for love. कि हाँ। flowers are so scared कि मैं तुम्हें फूल लाऊंगा etc. And I thought कि the poem started ironically. कि you are leaning into the cliche, but it's not cliche at all. कि the flowers I want to bring you, हम्म। wild and wet from the pale dunes. Nobody thinks of flowers and dunes. हम्म। And then it's like, oh, still smelling of the summer night. I still can believe the cliche. And then suddenly she's like holding a moment or two of the night cricket's humble prayer. What हाँ। is that? एकदम से like, what is the side tracking of these very cliche images? And now I'm still like, for example, she said still holding a moment or two of the night cricket's humble prayer. हम्म। And now I cannot let go of that sight. I cannot let go of the pale dunes. Flowers and she are the least, and the night. राइट I'm राइट। not holding my attention because of this. I love the way राइट, हाँ कि वो जो इमेजेस उसने एक के बाद एक बनाई, आई एग्री कि फ्लावर्स इज अ क्लीशे, बट वो फ्लावर्स को लेके एकदम जो जोश में, वो एकदम ही अलग सी उसने एक वो बात बना दी, स्टिल स्मेलिंग ऑफ द समर नाइट, एक तुम्हारे मन में नाइट आ गई, तुम्हारे मन में एक ड्यून्स आ गए। तो मतलब ड्यून्स से तुम्हें थोड़ा वैसा फीलिंग आता है ना कि ऑफ डर्थ, मतलब कि बंजर है वहां पे कुछ तो कि प्यार अनरिक्विटेड है, तो दुख आ गया फिर। और मतलब वो भी, एक्चुअली सिंस वी आर हियर, हमने शायद पहले बात करी थी कि पोएम्स दैट वर्क रियली वेल कंबाइन मोर लाइक मल्टीपल सेंसेस। तो एक्चुअली इफ यू सी, उसने स्मेल कंबाइन करी, स्टिल स्मेलिंग ऑफ द समर नाइट। मतलब अगर आप, जैसे मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे एक वो आया कि जैसे जैस्मिन की खुशबू आती है ना कभी कभी रात को, बहुत भीनी भीनी सी, और हम्म स्टिल होल्डिंग अ मोमेंट और टू ऑफ द नाइट क्रिकेट्स हम्बल प्रेयर, उससे आपको साउंड सुनाई दी क्रिकेट्स की। तो वो सब उसने कंबाइन किया कि मतलब एक रात है, उसमें एक भीनी सी स्मेल है, क्रिकेट्स हैं, और एक पागल दीवाना आशिक है जो फूल तोड़ के ला रहा है। ला रही है एंड इस। कितना अजीब है ना कि स्टिल स्मेलिंग ऑफ द समर नाइट की इमेजिन फूल है कि द फ्लावर इज सो कनेक्टेड विद द नेचर अराउंड इट कि द फ्लावर इज कनेक्टेड टू द ड्यून्स, द फ्लावर इज कनेक्टेड टू समर नाइट, द फ्लावर इज कनेक्टेड टू द क्रिकेट्स हम्म। कि आई रियली लाइक कि इन हर कंस्ट्रक्शन ऑफ लव हम्म। शी इज लेजिटिमेटली ब्रिंगिंग आउट द फैक्ट दैट कि भाई ये फ्लावर्स को लिटरली प्लग किया जा रहा है कि यूजुअली फ्लावर्स की कोई आइडेंटिटी नहीं होती बट यहाँ पे फ्लावर्स की इतनी सॉलिड आइडेंटिटी है। हाँ राइट राइट राइट, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट यू आर सेइंग कि मतलब उसने फ्लावर्स को भी उतनी वैल्यू दी
बेसिकली उसने खुद से अटेंशन हटा के, एक्चुअली वो शी इज टॉकिंग अबाउट फ्लावर्स ओनली फॉर दीज 3 sentences, मतलब मे बी सिम्बॉलिकली शी इज टॉकिंग अबाउट हर लव, बट उसने फ्लावर्स और उसका पूरा एनवायरनमेंट, की फ्लावर्स में समर नाइट की खुशबू है, फ्लावर्स में क्रिकेट्स की प्रेयर है, मतलब मे बी मेटाफोरिकली फ्लावर्स शायद उसके लव को रिप्रेजेंट करते हैं, बट स्टिल मतलब वो कनेक्टेडनेस है नेचर से, ऐसा नहीं है कि वो अपने बारे में बात कर रही है कि मेरा प्यार ये है, मतलब वो फ्लावर्स पे काफी Oh, I फोकस्ड है। never connected flowers to the love, but now that you say it, you also mentioned the Cape Barren dunes and हम्म। unrequited love. Huh? You made a very good connection. I think I never, I meant to, I was just happy with the imagery. But now you're like, oh, the whole imagery has a completely parallel meaning with herself. राइट राइट, नहीं बट वो बात भी सही है कि जैसे मतलब दोनों चीज़ें हैं, एक तो है कि नेचर से कनेक्टेड होके चीज़ों को देखना, जो आई थिंक मैरी ओलिवर जनरली बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहती है अपनी पोएम्स में, बट वही है ना कि जो आपका इमोशन है आप उस इमोशन को नेचर पे प्रोजेक्ट करते हो, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने एक बार बोला था कि जब मतलब व्हेन दिस पर्सन वाज लाइक फॉलिंग इन लव विद अ न्यू पर्सन, तो उसने बोला कि सडनली सब कुछ रोमांटिक हो गया है, सडनली बहुत ही रोमांटिक सनसेट होने लगता है, सडनली बहुत ही रोमांटिक हवा बहने लगती है। तो इट्स लाइक कि वही चीज़ें हैं बट तुम अपने इमोशंस उन चीज़ों पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसा Hmm. कि हम्बल प्रेयर में भी जो हम्बल प्रेयर है वो उसकी लवर की हम्बल प्रेयर है कि उसका प्यार एक्सेप्ट हो जाए, वैसा। तो उसको क्रिकेट्स Hmm. की एक हम्बल प्लेयर, मतलब क्रिकेट्स के बाद उसे हम्बल प्लेयर लगने लगती है। ठीक है, Got it. So interesting. बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हम्बल प्लेयर वुड हैव बीन सो हैंडसम इन योर हैंड्स, सो हैप्पी आई डेयर टू से इट इन योर हैंड्स, येट योर स्माइल वुड हैव बीन नोवेयर। एक्चुअली ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि उसके बाद इमोशन चेंज हो जाता है। तो आई थिंक ये इसलिए मुझे करना था क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, तो मुझे वो बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इसने इन योर हैंड्स 2 बार बोला कि ऑफ द नाइट क्रिएट्स हम्बल प्रेयर वुड हैव बीन सो हैंडसम इन योर हैंड्स, सो हैप्पी आई डेयर टू से इट इन योर हैंड्स। मतलब मुझे पर्सनली वो फीलिंग आई कि होता है ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो बट वो इंसान आपसे थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ रीच है, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू पाइन फॉर या यू विजुअलाइज इज देयर हैंड्स, क्योंकि आप मतलब सीधा किस करना विजुअलाइज नहीं करोगे, मे बी आप ये विजुअलाइज करोगे कि उस Hmm. इंसान के हाथ कितने सुंदर है, क्योंकि हाथ पकड़ना इज लाइक काइंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अफेक्शन ना। तो आप उस इंसान के हाथों को बहुत ज़्यादा वो करते हो कि वो सुंदर हाथ तुम्हारे कि किसी तरह छूने को मिल जाए ना, वैसा। तो वो Oh, बहुत uh, okay, I can see. हम्म। Hmm. And ki now that I am seeing the flower as the love, हम्म। ki Mary Oliver herself, ki हम्म। it's like so handsome in your hands, so happy I dare to say it in your hands. Ki I हम्म। really like the I dare to say it. Ki राइट। ki I don't want to dream, but I cannot help it. वही एक मतलब उसमें वो है ना, पागलपन इनोसेंस सा है कि कह दूं क्या, मतलब कह दूं क्या या चुप रहूं, वो जो गाना है। It's ठीक है। actually कर बहुत क्यूट है ये हम्म। पूरा। बट इसके बाद कैसे एकदम से सैडनेस में बदल जाता है, येट योर स्माइल वुड हैव बीन नोवेयर। आई वाज हाँ, लाइक ये क्या हुआ? यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट अब यहाँ अभी हम सपने देख रहे थे कि प्यार के तुम्हारे हाथों में मैं हूँ फ्लावर। फिर Yet your smile would have been nowhere, and maybe you would have tossed them onto the ground. Or maybe for tenderness, you had taken them into your house. वाह, कितना ज्यादा ब्रूटल है। and given them water, put them in a dark corner out of reach. This is amazing. This is why I love this poem. कि इसमें नो होल्ड्स बार्ड फीलिंग्स है, मतलब कि एकदम ही रोमांटिक उसमें खो जाना और फिर उसके बाद इधर आना कि
हाँ मतलब तुम शायद ग्राउंड पे फेंक दोगे शायद उन्हें, या तुम शायद ऐसे ही बस पानी देके साइड में कहीं डार्क कॉर्नर में रख दोगे उनको। मतलब एक एक उसमें गुस्सा सा है, एक वो होता है ना कि जब तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस मिलता है तो गुस्सा होता है ना कि क्यों नहीं मिल रहा, वैसा मुझे बहुत लगा इसको पढ़ के। To me, also got the imagery कि unrequited love is actually not silent. हम्म। Unrequited love is vocal. Why would someone just एक सेकंड एक सेकंड एक toss सेकंड। flowers? हाँ बोल। Okay, why would someone just toss flowers on the ground? Okay, you are हम्म। getting flowers. Okay, unless you are in love with a madman, हम्म। essentially you have been a persistent stalkerish almost, where someone is like, नहीं चाहिए यार बाढ़ में जाए कि I visualize that as the कि this person is saying this, but this gave me a kind of a, what the other person looks at, like when they look at the poet, what do हम्म। they think? Okay, and it could have actually been an imagination, but why would the imagination go into tossing them into the onto the ground? हाँ आई थिंक वो उस मतलब दैट इज द एंगर दैट द पोएट फील्स नो, बिकॉज द लव इज अनरिक्विटेड। ऐसा नहीं लगा तुझे? Oh, कि what you're saying is that this is not actually happening. Okay, this is राइट। not a real. Okay, it's a fear-based फियर। emotion. Right, right. It is a fear and anger based emotion. And nothing of this is happening actually. This person is just imagining कि the flowers I wanted to give you, I मतलब they have not actually got the flowers. वो बस अपने सर में imagine करे जा रहे हैं कि ये होता तो ऐसा होता, फिर ऐसा होगा, फिर मे बी ऐसा होगा, फिर मे बी you will toss them to the ground, फिर मे बी you will do this, maybe this will happen. So it is all just in the poet's head, and that imagination is going from a romanticization of everything, ki dreaminess, so happy they would be in your hands, to the sudden realization ki oh this cannot happen because maybe you don't have the same feelings for me as I do. So then there is an anger when you reach that realization that oh maybe you just toss them because मतलब आई थिंक आई लव दिस इमोशन कि व्हेन दैट लव इज अनरिक्विटेड, यू नो दैट पर्सन वो तुम वापस नहीं कर रहा है, एंड देन यू आर काइंड ऑफ पेंटिंग दैट पर्सन इन एन इविल लाइट कि ओ तुम तो बहुत इविल हो, इसलिए तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो, तुम तो फूल भी फेंक दोगे, तुम तो इतने इविल हो। मतलब वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। Got it. कि okay, I genuinely, literally thought of the poet as a mad woman. So, but I can see I think I really like the part you paint the other picture as the it's a you problem. You are not doing this. Because I am so why will you not want me? हाँ मतलब मुझे उसमें एक रिजेंटमेंट लगी कि यू आर नॉट वांटिंग मी में, वो डायरेक्ट रिजेंटमेंट नहीं है कि पोएट इज नॉट सेइंग कि ओ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट लव इज। वो डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोल रही है पोएट कि तुम इसलिए प्यार नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं प्यार क्या है। वो बहुत एक अंडर हैंडेड सा, बट उसके अंदर एक गुस्सा है कि मे बी यू वुड जस्ट टॉस देम टू द ग्राउंड, और मे बी यू जस्ट गिव देम वाटर एंड पुट देम इन अ डार्क कॉर्नर। मतलब एक बहुत ही सटल सा उसमें एक इम्प्लीकेशन है कि तुम इतने इविल इंसान हो कि तुम तो फूलों को कहीं कॉर्नर में ही रख दोगे ना, तुम्हारे अंदर तो क्योंकि हार्ट ही नहीं है, तुम तो कोल्ड हार्टेड हो। But And actually, the second part of this sentence to me does not sound cold-hearted. It actually feels a very sad realization कि instead of tossing to the ground and literally burning bridges with the poet, if like you can be like, oh, they are so pretty, but you genuinely forget them. You are watering it, so you are trying to keep it alive, but they have no रियल। bandwidth in your world. It's that friend zoning wala situation. राइट राइट। कि you care, but not enough. You are like, be away from my eyes. Be alive, but be away from my eyes. राइट राइट राइट। हाँ आई थिंक दोनों है, मतलब आई एग्री, आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग्स ऑफ फीलिंग्स कि देर इज सैडनेस, देर इज रेजिग्नेशन, देन मे बी आई एम रीडिंग इट दिस वे क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो देर इज एंगर वैसा। बट वो भी बिल्कुल Hmm. सही रीडिंग है कि मे बी इट्स लाइक अ
friend zoning, that you are giving them tenderness, the flowers, you are giving them water, but you actually मतलब don't care. तो एक वो sad तेरी रीडिंग है sad resignation वाली, मेरी रीडिंग है anger वाली. I love कि how we can read it in different ways. Hmm. ठीक है. And then okay, हाँ, this is actually the next paragraph is actually very interesting. In matters of love of this kind, there are things we long to do but must not do. I think this ये is the only philosophizing she has done in the whole exactly, poem. exactly. He, I really like it. This is the most important line in the whole poem, and Hmm. it's like sandwiched somewhere randomly in between it. But it's still very maximum impact. He, after all the roller coaster of emotion, Hmm. I read this line very sincerely. Okay, oh, this is the nugget of wisdom that she is giving us. हाँ एक्चुअली, एंड मुझे ये इसलिए इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि मैंने एक्चुअली एक और पोएम पढ़ी थी मैरी ओलिवर की जस्ट बिफोर दिस वन, एंड देयर इज अ पैटर्न इन विच शी बेसिकली प्लेस टू रोल्स इनसाइड अ पोएम. जैसे फॉर एग्जाम्पल शी हैज टू पर्सनैलिटीज. सो द फर्स्ट पर्सनैलिटी इज द वन, लेट्स से, विच इज writing all of these initial paragraphs, which is like a childish personality full of passion and love. And then there is this second personality which is more wise and motherly. ऐसा होता है ना Hmm. कि अपने अंदर ही दो वॉइसेस होती है ना, कि वन वॉइस इज लाइक कि अरे ये हो जाएगा, अरे बहुत क्या वाइल्ड एंड वेट लव है मेरा तो, एंड देन यू आर वेरी सैड. एंड देन देयर इज दिस wisdom, like there is this old person inside you which is like in matters of love, मतलब it's like self क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ सूदिंग बिहेवियर. ये वाली लाइन मुझे बहुत सेल्फ सूदिंग बिहेवियर लगी. और उसकी एक पिछली पोयम में भी, क्योंकि सेम ही पैटर्न था, देयर वॉज दिस टोन. हम टोन की बात करते हैं ना, तो द टोन सडनली चेंजेस इन दिस पैराग्राफ. नो, यहाँ पे इमोशन चेंज हो रहा है, इमोशन इज गोइंग फ्रॉम पैशन टू लाइक सैडनेस और एंगर, बट इस पैराग्राफ में टोन ही चेंज हो गई. तो वो Hmm. है कि एक सेल्फ सूदिंग पर्सनैलिटी है उसके अंदर विच कम्स आउट लाइक फॉर अ वाइल, एंड देन इफ यू सी दिस अदर फर्स्ट पर्सनैलिटी इज कमिंग बैक इन द नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स, एंड इट्स लाइक कि इस सेकंड पर्सनैलिटी ने सेल्फ सूद कर लिया, एंड नाउ दिस फर्स्ट पर्सनैलिटी इज लाइक कि हाँ ठीक है, फाइन. Actually, that's not there, right? Ki, I think this is also self-soothing only. I actually agree with you. All these three paragraphs to me are the same because this person is saying ki, love or not, there are other things that I genuinely cherish. राइट. Okay, even in current situation, I don't see her being a very emotion driven person here. I think emotion driven है, but it is very actually calm. कि, like there लाइक is a एक्चुअली मैंने acceptance of the situation in the whole thing. इस पैराग्राफ को सिंगल आउट इसलिए किया बिकॉज दिस इज द ओनली पैराग्राफ इन विच शी टॉक्स इन वी टर्म्स, एंड एवरी अदर पैराग्राफ शी टॉक्स इन आई एंड यू टर्म्स, कि यू वुड डू दिस, आई वुड. Oh, तो वो लगा कि एक got it. सेल्फ, Got it. खुद को तुमने एक विजडम दे दी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड देन यू आर लाइक ओके, आई एग्री टू. I get it. This V part actually, I also agree कि this paragraph really, really stands out. हाँ. Despite it actually not having anything. Like, if you read this line in matters of love of this kind, there are things we long to do but must not do. What? Like, this is such a like okay statement. As in, it's a very well constructed statement. But the thing is कि राइट the राइट. throwbacks are amazing. हाँ. Without like it stands so well with the already poem we have seen. And एग्जैक्टली. I really like that it does not end here. एग्जैक्टली. That is the best part about this paragraph. हाँ, I also agree. Actually, when I read this, I was searching for this poem on the web, ये screenshot लेने के लिए, and then I found a place जहाँ पे यहीं पे end हो रही थी poem. Into your house and given them water, put them in a dark corner out of reach. And this is actually also a valid ending because this ends on anger. But then you are right कि उसके बाद अगर वो यहाँ end हो जाती तो it would not have been so strong because this paragraph in itself is not saying something unique.
मतलब इट इज सेइंग समथिंग वेरी बेसिक, बट वो जो बेसिक चीज है वो इसलिए वर्क इसलिए कर रही है बिकॉज इट इज सैंडविच्ड इन दिस स्टोरी, कि ये जो पागल इंसान की स्टोरी है उसके बीच में सैंडविच है, दैट इज व्हाई इट वर्क्स सो वेल। आई एग्री, मतलब हाँ, And यहाँ। I think I also see a point of B versus I कि she's हम्म। telling a story. हम्म। And if you remove this paragraph, actually the poem actually stands, but this is suddenly a completely out of body sentence. हाँ, I get it now कि एंड आई लव दिस कि वो डबल टोन उसकी पोएम में मुझे पहले भी दिखा है, दिस डबल पर्सनालिटी। आई थिंक आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई इट। काफी सही लगा ये तुझे। ठीक है, लास्ट भी पढ़ते हैं। I hmm. would not want to see your smile diminished, and the flowers anyway are happy just where they are, on the pale dunes above the cricket's humble nest, under the blue sky that loves us all. Hmm. That's so cute. She's going back to the nature. कि why destroy this flower which is so हाँ, राइट। आई थिंक वो, मतलब इन जनरल हर पोएट्री इज वेरी नेचर कनेक्टेड है, एंड आई मैंने कहीं पढ़ा था कि शी वेंट थ्रू अ लॉट लाइक ऑफ मिजरी इन हर लाइफ, and she used to find like peace and pleasure in appreciating nature. तो whenever she wants to go back to like feeling happy, तो वो nature से connect करके करती है, तो वो I तो। really want to know a happy poet. I genuinely think all poets are just sad. बट आई थिंक ये भी अच्छा लगा मुझे कि शी इज़ नॉट वही, मतलब नेचर की ब्यूटी के बारे में बात करना इज ऑल्सो डिफिकल्ट थिंग बिकॉज यू कैन फॉल इन टू क्लीशेज, बट आई थिंक मतलब उसने बहुत सिंपल बात करी बट वो क्लीशेड नहीं लगी, मतलब अंडर द ब्लू स्काई क्योंकि दैट। she shows the connectedness. I would not have even thought about a cricket nest. कि I was like, cricket as a nest? Good to know. कि एंड क्रिकेट उसमें हम्बल भी रखा, हम्बल प्रेयर थी ना पहले क्रिकेट की, क्रिकेट्स हम्बल प्रेयर, तो क्रिकेट्स आर कि it कंसिस्टेंट। actually shows her, it actually shows the depth of how much in nature because pale dunes has flowers, pale dunes has राइट राइट crickets and राइट। nests. I would not have like she's going taking me to a nature that she knows and she has seen, हाँ and that is what I like. It actually is informative for me apart from all the emotions. हाँ, नहीं एक्चुअली बट दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज अगर मैं ऐसे ही कुछ भी स्टेटमेंट लिख दूँ तो यू कैन सी थ्रू द क्लीशे, बट इसमें बिकॉज शी इज़ रिपीटिंग हर सेल्फ या शी इज़ यूजिंग वेरी स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स, इट डजेंट फील लाइक कि शी इज़ बीइंग सुपरफिशियल, मतलब इट Hmm. लाइक एज यू सेड कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट शी नोज अबाउट, जेन्युइनली नोज अबाउट एंड केयर्स अबाउट, ऐसा फील होता है, तो इसलिए वो Hmm. मतलब कंफर्टिंग लगता है। हम्म, ठीक है। आई थिंक आई लव पोएम्स विच हैव स्टोरीज इन देम, एंड दिस इज लाइक अ फुल स्टोरी ऑफ अ पर्सन romanticizing, then becoming sad, then self-soothing, and then accepting beauty of nature. तो मुझे तो काफी Hmm. स्टोरी लाइक पोएम्स। ठीक है, और कोई स्पेशल इसमें कमेंट? Not really. I genuinely enjoyed looking at this again. I suddenly remembered I used to love this. हाँ, Okay, और the poem. Hmm. I आई think the problem the last time we started and abandoned this is because I brought a poem. I think I genuinely like to discover poems. आई थिंक आई लाइक, मेरे को मैंने मैरी ओलिवर की पोएम इसलिए चूज करी बिकॉज शी इज लाइक वन ऑफ दोज वर्ड्स विच हु आर रियली एक्सेसिबल, मतलब कोई भी मुश्किल वर्ड है ही नहीं इस पूरी पोएम में, बट इट्स स्टिल सो ब्यूटिफुल, तो मुझे वो बात बहुत It's सही still लगी। slightly cryptic, I'll say. इन टर्म्स ऑफ इमोशंस में बी, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग और इंग्लिश। Not in terms of wording, but in terms of the way she thinks. I think I had to take a moment, like, I did not understand it in the first reading. I understood mostly in the second reading. But while discussing, a lot of meanings got clear. Ki, that
The flowers are her love, etc., etc. She does not make things obvious. Okay, she does not try to hide it, Hmm. but her thought process is complex. Hmm. Writing is simple. हाँ, right. That's very well put actually. Her thought process is complex, and that's what I love about her. कि simple writing but complex emotions. Hmm. ठीक है, तो आई थिंक लेट्स कीप इट शॉर्ट. वैसे तो आई वांट टू डू अनदर मैरी ऑलिवर पोएम. दिस इज फ्रॉम अ कलेक्शन कॉल्ड डिवोशंस, एंड ये उसने तब लिखी थी व्हेन हर लॉन्ग टाइम लवर पास्ड अवे. तो इट हैज़ लॉट ऑफ ब्रीफ पोएम्स. तो हम एक और मतलब उस कलेक्शन के हम 2-3 पोएम्स कर सकते हैं एक साथ, विच वुड बी रियली फन आई थिंक. Let's do it. I think I like this Mary Oliver. Okay, we have done multiple poems in the past also. Always we have liked it. हाँ, and I think let's do multiple poems from the same collection and see like if we can see कि मतलब are they somehow thematically उसमें कुछ connection है या क्या है वैसा. Hmm. ठीक है. um, ठीक है, मैं पढ़ूँ एक लास्ट बार या तू पढ़ेगा? You read it. I like the way you read. ठीक है. Doesn't every poet write a poem about unrequited love by Mary Oliver? The flowers I wanted to bring you, wild and wet from the pale dunes, and still smelling of the summer night, and still holding a moment or two of the night cricket's humble prayer, would have been so handsome in your hands, so happy I dare to say it in your hands. Yet your smile would have been nowhere, and maybe you would have tossed them onto the ground. Or maybe for tenderness you would have taken them into your house and given them water, put them in a dark corner out of reach. In matters of love of this kind, these are things we long to do but must not do. I would not want to see your smile diminished. And the flowers, anyway, are happy just where they are, on the pale dunes, above the cricket's humble nest, under the blue sky that loves us all. एक्चुअली Wow. इसकी लाइन लेंथ भी मुझे काफ़ी सही लगी. मतलब इट्स नॉट राइमिंग बट द लाइन लेंथ्स, मतलब जो हमने एक बार आई थिंक पेंटामीटर उसकी बात करी थी, मीटर की बात करी थी. मतलब मीटर बहुत कंसिस्टेंट है. Yes, I think I forgot. This is something I noticed, but her poem was so good that I forgot राइट. this the rhythm that she has. दैट्स सो गुड ना कि व्हेन यू फॉरगेट अबाउट द टेक्निकलिटी बिकॉज यू फील सो गुड रीडिंग इट. Exactly. ठीक है, दिस वॉज फन एंड वी विल ट्राई टू मीट नेक्स्ट वीक ऑल्सो. तो ठीक है, Yes. अभी के लिए गुड बाय. Bye सी. bye.